Welcome back to our continuing coverage as the nation bids farewell to the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. In fact, tributes have been pouring in and people from all walks of life have expressed their sorrow. Some have even described his passing away as the end of an era. And we at CNN News 18 have been speaking to leaders from across the political spectrum, including from the Congress Party and the Indy Bloc. Let's take a look at some of those voices and what they had to share about the erstwhile Prime Minister. We have the Prime Minister now bidding adieu to one of his colleagues, and he took over the mantle from him, from Dr. Manmohan Singh. It is really a sad day, and Dr. Manmohan Singh's legacy will be remembered for generations to come. He's a redefining of the Indian economy, the way we thought about liberalization, privatization, which was a no-no till he came on the scene. And his humility, his quiet way of working, but very firm way of working. I've worked as a minister for 10 years under him, and I knew that, once you present something to him, explain it to him, and he's convinced, then his support was fullest, and he also would monitor all the progress and the schemes which was given to him, shown to him. And I think not only was he a strong leader, people always thought that he's somebody who can be pressured into something. I don't think that was the case. One of the key examples would be the Indo-US nuclear deal. You remember 64 MPs of the left parties were supporting the government from outside. And many advised him that, pushing this through will lead to a collapse of the government. But he was convinced that this was a redefining moment for India-US relations, also for India's progress into the new economy. And I think he stood by his conviction. And now all that is history. Been, a very big success. I think he will be definitely remembered for generations to come, and India should be really grateful that the right man came at the right moment in the history of India. I remember you were very much beside him as an I&B minister when he made that famous comment that history is going to look at me kindly. Can you just share with our viewers how is it that history is going to remember him? Well, Dr. Manmohan Singh was a colossus, and he strode before both the economic and the governance firmament like an absolute intellectual giant. Suave, affable, soft-spoken, but very firm. He was a person who was an inspiration. All right, we also have now on the broadcast Harish Rawat, the former Chief Minister. Thank you so much, Mr. Rawat. It's a very sad day for the entire nation as the entire country bids farewell to Dr. Manmohan Singh. And we'll be speaking to so many people who have been reminiscing about their times, their conversations and moments spent with a visionary like Dr. Manmohan Singh. Your thoughts as the nation mourns his loss? आज कह देता हूँ उनसे हेलो रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। आप कैन यू शेयर सम ऑफ योर थॉट्स एंड योर मेमोरीज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह? जी, वो एक महामानव थे जी, एक ऐसे राजनेता और एक विद्वान व्यक्ति का समन्वय थे जिन्होंने बहुत कठिन काल में देश की अर्थव्यवस्था को पहले वित्त मंत्री के रूप में बर्बादी से बाहर निकाला और एक रास्ता दिया जिसको लोगों ने आर्थिक सुधारीकरण की बात कही, वैश्वीकरण की बात कही। और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक कठिन कॉम्बिनेशन को, एक गठबंधन को, जिसमें एक तरफ ध्रुव वामपंथी थे तो दूसरी तरफ आर्थिक सुधारों की बात थी, लेकिन सबको साथ लेकर के चले और उन्होंने समन्वय बनाया आर्थिक सुधारीकरण और आम जन के अधिकारिता का। आम जन को उन्होंने जो है एम्पावर्ड किया, जिसमें आप देखते हैं
वनाधिकार का कानून बनाया वनवासियों के लिए, उनके जंगलों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए, उनको अधिकार दिए जहां वो बसे हुए हैं, जो उनका राइट है फॉरेस्ट में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक कानून बनाया गया। मनरेगा दिया जिससे काम का अधिकार लोगों को मिला, अन्न का अधिकार दिया, अन्न सुरक्षा का कानून बनाया, जो आज जो फ्री राशन भी मिल रहा है उसी योजना के तहत मिल रहा है। और उन्होंने सूचना का अधिकार देकर के सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने का ही काम नहीं किया, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया, जिससे जो आज एक इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में जो लोग कहीं आरोप लग रहे हैं, ये अलग बात है कि आज उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उन्होंने सदुपयोग के लिए कठोर कानून बना करके दिया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया। तो इन अधिकारों का आर्थिक उदारीकरण के साथ उन्होंने समन्वय किया। रावत जी, और जब देश को जब एक नई तकनीक की जरूरत पड़ी और उनको लगा कि हमको जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाई हैं उनसे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने न्यूक्लियर डील जिसको कहा गया यूएस के साथ की और अपनी सरकार को दांव पर लगाया। सब लोग कहते थे क्या होगा, सरकार को दांव पे क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये अलग बात है कि बाद में हम सरकार बचाने में सफल हो गए, लेकिन उन्होंने कठोर कदम भी उठाया। तो एक तरीके से वो जहां एक बहुत ही विनम्र, शालीन, सादगी भरे व्यक्ति थे, मगर राष्ट्र हित में, देश समाज के हित में बड़े से बड़ा कदम उठाने से वो चूकते नहीं थे। और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि मौन उनकी ताकत थी, नम्रता उनकी ताकत थी। आपने ना मेरी मन की बात पढ़ ली। ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, जब आपने कहा था कि उन्होंने अपने सरकार को दाव पर लगा दिया है और सब उस टाइम जो विपक्ष में थे वो कहते थे कि मौन प्रधानमंत्री है, कुछ बोलते नहीं है, बट आपको लगता है कि ये ही उनकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, टू टेक द कोalition अलोंग? इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट कोalition 10 साल के लिए, बट सबको साथ में लेकर जाना एंड बीइंग एब्सोल्युटली अनअफ्रेड कि कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, बट जब स्ट्रॉन्ग मुद्दे थे ही held his ground, he stood his ground, he did not give up. आपको लगता है कि वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था? देखिए, yes, that was the biggest stand which he has taken in the interest of the country. Yes. In the interest of the country's future. उन्होंने अपनी पूरी सरकार स्टेक पर लगा दी और हम सब लोग कहते थे साहब क्या होगा, ये क्या टाला नहीं जा सकता है, ये समझते हुए भी कि जो है, लेकिन वो कन्विंस थे कि ये स्टेप को लेना देश के हित में जरूरी है और उन्होंने वो स्टेप लिया। और जब ये अन्न सुरक्षा के अधिकार की बात आई तो सारे मंत्रालय सबकी ये था कि साहब इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा डोंट वरी, यदि ये गरीब के हित में कदम उठाना है और सोनिया जी का ये निर्णय है तो इस निर्णय को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पैसे का बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये मतलब वो अर्थशास्त्री के रूप में अपनी क्षमता पर उनको विश्वास था, लेकिन साथ साथ देश के लिए क्या कदम उठाना है उस पर भी वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे। और एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में जो है, जब उन पर आरोप आक्षेप लगे, आज वो आक्षेप कहाँ है जो उन पर लगाए गए, वही आक्षेप टिक पाया है ऐसा। लेकिन जब उनके खिलाफ पार्लियामेंट में बम्बार्डमेंट होता था, विपक्ष बहुत आक्रामक होकर के पार्लियामेंट में और उसके बाहर कहता था, तो उन्होंने एक कविता कह करके, 2 लाइनें कह करके ये कहा कि जो तुम बहुत बात जो कर रहे हो, लेकिन मेरा जो मेरे मौन है, मेरी चुप्पी है, वो तुम्हारे सैकड़ों सवालों के, हजारों सवालों का जवाब है। तो ये वो एक पार्लियामेंटेरियन भी ऐसे थे कि जो चंद शब्दों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को निशस्त्र कर देते थे। जब जरूरत आती थी तो आक्रामक भी थे, लेकिन आक्रामक वहीं थे जहां जो है पार्लियामेंट्री आवश्यकता होती है, लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, वहीं आक्रामक। जी, thank you so much, Harish Rawat, the former Chief Minister of Uttarakhand, for speaking to CNN News 18. The entire nation today bidding farewell to Dr. Manmohan Singh, an eminent visionary and erudite statesman, with everybody only speaking and remembering his humility and just how he transformed India in so many ways.